اس بار ہم کوشش کریں گے کہ ساری کی ساری چیزوں کا پتہ چلے کہ کیوں آپ نے اسلام چھوڑ دیا. تو میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ جب تک آپ اسلام میں تھے تب تک کیا کچھ ہوا؟ یعنی آپ کی فیملی کتنی ہارڈ کور تھی، پریکٹسنگ تھی، کیا حال تھا؟ پھر آپ کتنے پریکٹسنگ تھے؟ بچپن آپ کا کیسا گزرا؟ پھر آپ کیا مدرسے میں آپ نے تعلیم لیا؟ کتنے سال آپ وہاں پڑھے؟ جب تک آپ اسلام میں تھے وہ پوری داستان ہمیں بتائیے. جی حضرت، اگر میرا فیملی بیک گراؤنڈ کا ہو تو میرا فیملی بہت ہی اسلامک پریکٹسنگ مسلم تھا. ایسا نہیں کہ لبرل مسلم تھوڑا سا اسلام فالو کرو تھوڑا سا فالو نہیں کرو. میرا ماما اور میرا فادر جو ہے نا وہ دونوں عالم تھے، اور میں ایسا ایک فیملی کا سنتان ہو جہاں پہ دوسرا کوئی جیسا کہ کہا جاتا ہے نا میوزک، ٹیلی ویژن، مووی، آڈیو، کوئی بھی کچھ بھی نان اسلامک کچھ بھی یہاں پہ پلے کرنا، دیکھنا، سننا سب کچھ حرام تھا، سارے کے سارے حرام تھا. ایسا بھی نہیں ہوا کبھی کہ ہمارا یہاں پہ کوئی ایسا کہ پارٹی ہو رہا ہے تو پارٹی پہ بھی جانا ہمارے کے لیے حرام تھا. ہمارے ماں ہمارے باپ وہاں سے رکتے ہیں، اور میں پہلا ہی سے کیا کہتے ہیں درس نظام دارالعلوم دیوبند کے نصاب سے، جس کو درس نظامی کہتے ہیں، میں بچپن ہی سے وہاں پہ پڑھا. اور یہاں پہ میں نے اردو، عربک، اردو ہی پہلا ہی پڑھایا جاتا ہے دارالعلوم دیوبند کے نصاب سے. جیسے کہ پہلا جماعت میں ہوتا ہے اردو پہلی، اور دوسرا جماعت میں ہوتا ہے جیسے کہ اردو تیسری، اردو تریتی، اردو چوتھی، ایسا پڑھایا جاتا ہے. پھر عربک شروع ہوتا ہے تھوڑا اوپر والا جماعت سے. عربک شروع ہوتا ہے جیسے کہ صرف، علم الصرف کا صرف شروع ہوتا ہے سکس گریڈ میں، اور علم النحو صرف شروع ہوتا ہے سکس گریڈ کے بعد 7 گریڈ سے. پھر علم البلاغہ، علم الانشاء، علم المنطق یہ پڑھایا جاتا ہے اور اوپر والا گریڈ پہ. تو میں علم مدارس قومی میں جتنے علم پڑھایا جاتا ہے جیسا کہ علم نحو، علم بلاغہ، علم صرف، علم انشاء، علم المنطق، اور علم الحدیث، علم التفسیر، اصول الفقہ، علم الفقہ، اور بہت سارے کچھ. یہ تو منیمم ہے نا. یہ سارے علوم پڑھایا جاتا ہے درس نظامی کا پہلا سے لے کر کیا کہتے ہیں دورہ حدیث تک. تو میں یہاں پہ دورہ حدیث کا جو کورس ہے نا وہ میں نے ختم کیا. کتنا سال لگا میرے کو؟ یہ 16 سال کا کورس ہے، لیکن میرے کو اتنا سال نہیں لگا. میرے کو ایسا میں آپ کو کہوں گا، میرے کو یہ کمپلیٹ کرنے میں ایس ایس سی کا لیول پہ کیا ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے نا عالیہ مدرسہ کا داخل ایس ایس سی کا لیول کا ہوتا ہے. ایس ایس سی کیا آپ کو پتا ہے ایس ایس ساحل سی بھیا؟ ہمارے وہاں 10th کو بولتے ہیں. 10th کو بولتے ہیں سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ. جی. سو سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ. سو میں نے جس سال داخل پاس کیا اسی سال ایک ہی ساتھ میں نے دورہ حدیث بھی پاس کیا. تو سمجھو اس ٹائم پہ میرا عمر دورہ حدیث پاس کرنے کے ٹائم پہ میرا عمر صرف 14 ٹو بٹوین 15 تھا. تو آپ اگر سوال کرے کہ میرے کو ایسا کیسے ہوا، 16 سال کا یہ کورس میں نے صرف اتنے تھوڑی
टाइम पे कैसे खत्म कर लिया, क्योंकि मेरे वालिद साहब मेरे को ऐसा पढ़ाया कि जमात के जो कंडीशन है ना, वो कंडीशन थोड़ा सा मेरे से डिफरेंस कर दिया। मेरे को आ, इल्म लेकर सब्जेक्ट वाइज बुक से, पहला बुक से लेकर ये सेकेंडरी तक पढ़ा देते मेरा वालिद साहब मेरे घर पे। जैसा कि इल्म सरफ के पहला वाला बुक मेरे वालिद साहब मेरे घर पे पढ़ा दिया, और इल्म नहू के पहला वाला जो बुक है ना, जिससे इल्म नहू से शुरू होता है, फिर हिदायत नहू, फिर क्या कहते हैं, काफिया, फिर काफिया के बाद शरह जामी, ये सारे बुक होता है इल्म नहू का। तो प्राइमरी इल्म मेरे वालिद साहब ने मेरे घर की दे दिया था, और मेरे को एवरी ईयर टू क्लास करके प्रमोशन हो जाता है, क्योंकि मैंने घर पे सबके सब कुछ खत्म कर लिया करता। मैं क्लास पे जाता, क्लास पे पढ़ने के बाद मेरे वालिद साहब ने क्लास का जो ट्यूटोरियल था, वो ट्यूटोरियल तो मैं खत्म कर लेता, और मेरे वालिद साहब मेरे को एडवांस पढ़ा लेता। तो फिर एवरी ईयर मैं वन क्लास प्रमोशन, टू क्लास प्रमोशन करके एवरी ईयर मैंने ऐसा कर लेता। सिर्फ और सिर्फ मैंने एग्जाम देता, वो होता है ना, क्या कहते हैं, जो बोर्ड एग्जाम होता है ना, जैसा कि साफेला प्राइमरी पे पंजम पे एक बोर्ड एग्जाम होता है, वो बोर्ड एग्जाम पे मैंने अटेंड किया। फिर मैंने साफेला में जो बोर्ड एग्जाम होता है हिदायतुन्नहू पे, वो हिदायतुन्नहू पे बोर्ड एग्जाम पे मैंने अटेंड किया। फिर आलिया पे जो बोर्ड एग्जाम होता है मुख्तसर का, तो जमात मुख्तसर में बोर्ड एग्जाम होता है, वो बोर्ड एग्जाम मैंने अटेंड किया। और उधर होता है मिशकात पे बोर्ड एग्जाम, और मिशकात का बोर्ड एग्जाम पे मैंने अटेंड किया। और फिर बोर्ड एग्जाम होता है दौरा हदीस का बोर्ड एग्जाम पे मैंने अटेंड किया। और उधर ही जिस साल मैं दौरा हदीस का बोर्ड एग्जाम पे रजिस्ट्रेशन किया, इसके 2 साल आगे मैंने आलिया मदरसा का 9 पे रजिस्ट्रेशन किया था डायरेक्ट। मैं आलिया मदरसा में पहले से क्लास 1 2 3 4 5 ऐसा ऐसा नहीं पढ़ा, डायरेक्ट क्लास 9 पे रजिस्ट्रेशन किया। अच्छा। तो या डायरेक्ट क्लास 9 पे रजिस्ट्रेशन किया। और यहाँ भी मैं क्या कहते हैं, साइंस पे रजिस्ट्रेशन किया था। वहां पे मेरा सब्जेक्ट था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड इंग्लिश, मैथ, जनरल मैथ, हायर मैथ वगैरह वगैरह। और कुरान का सब्जेक्ट भी था, हदीस का सब्जेक्ट भी था। सिर्फ मेरे को पढ़ना तो मेरे को वहां पे स्टडी करना पड़ा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, और क्या कहते हैं, और कुछ नहीं, ये कुछ जनरल सब्जेक्ट। और कुरान का सब्जेक्ट और हदीस का सब्जेक्ट और अरबिक का सब्जेक्ट जो था, वो सारे मेरे को इतना कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं था। तो फिर जिस साल मैंने दौरे हदीस पास किया, उस साल ही दौरा हदीस का कौमी मदरसा का एडमिशन ऐसा होता है, हर साल शाबान के महीने में फाइनल एग्जाम हो जाता, और फिर सारे रमजान का महीना मदरसा क्लोज रहता। सारे रमजान एक महीना तरावी पढ़ना, इबादत करना, ये वो सारे सब कुछ के लिए मदरसा क्लोज होता एक महीना। फिर एडमिशन शुरू होता है रमजान शव्वाल का पहला वीक से। तो मैं एडमिशन लेकर उधर ही फाइनल एडमिशन का क्या कहते हैं, फाइनल एग्जाम का टाइम आ गया दाखिल का। सो मैंने सिर्फ वहां पे एडमिशन करने के बाद तो क्लास शुरू नहीं होता, और मैं उधर क्या कहते हैं दाखिल का जो एडमिशन
दाखिल का जो क्या कहते हैं बोर्ड एग्जाम, वो बोर्ड एग्जाम वहां पे एडमिशन दौरा हदीस पे एडमिशन लेने के बाद ही वो दाखिल का बोर्ड एग्जाम दे दिया। और दाखिल का अच्छा बोर्ड अल्लामा एग्जाम साहब, देने के बाद, जी हजरत, अल्लामा साहब, ये आप देवबंदी मदरसे में गए थे ना? या देवबंदी मदरसा तो दूसरा है, और आलिया मदरसा भी दूसरा है। आलिया अच्छा मदरसा और देवबंदी मदरसा दोनों पे एक ही साथ मैंने स्टडी किया, अच्छा। नहीं, ये एक ही आलिया साथ। मदरसा ये क्या कोई दूसरे फिरकों वालों का है या क्या है? आलिया मदरसा में कोई फिरका नहीं होता है, या एक ही फिरका है हमारे बांग्लादेश पे, वो है हम्म। जमात इस्लामी, मौदूदी का जमात इस्लामी का फिरका है ना। वहाँ आलिया हाँ। मदरसा में जितने सारे स्टूडेंट है, जितने सारे टीचर है, सारे के सारे, अगर कोई सियासत करना है तो जमात इस्लामी करना है, जमात शिविर करना है। अगर किसी ने अच्छा वहां पे दूसरा कोई इस्लामिक पार्टी किया, तो उन लोगों के मार पीट करके, उन स्टूडेंट को मार पीट करके, ऐसा एक गैंग होता है ना वहां पे, छात्र शिविर का ऐसा गैंग होता है ना, वो गैंग जब भी समझ जाएगा वहां पे दूसरा कोई लोग यहाँ पे आ जाए, जैसा कि हम्म, खिलाफत, जैसा कि जमीयत उलमा इस्लाम का स्टूडेंट सी मूवमेंट का नाम क्या है, इसको कहते हैं उसका छात्र संगठन का नाम क्या है मेरे को पता नहीं। अगर ऐसा कुछ दाखिल हो गया और बांग्लादेश पे कुछ भी ऐसा इस्लामिक सियासत है, जैसे कि खिलाफत मजलिस, सत्र मजलिस, और कुछ भी है, वो लोग अगर वहां पे दाखिल हो गया, जैसे कि कोई एक मीटिंग कर लिया, या कोई स्टूडेंट वहां पे झुक गया, या वहां पे कोई एक दो चार स्टूडेंट उधर उधर से आ गया, और यहाँ पे एक ब्रांच करने का कुछ कोशिश कर रहा, ऐसा अगर पता लग गया उन्हों के जासूस को, तो फिर वो सारे स्टूडेंट को ऐसा मार मारते हैं, फिर जिंदगी में वो आलिया मदरसा में जाने का कोई ताकत और हिम्मत नहीं मिलता। मेरे ही अच्छा सामने है एक स्टूडेंट को ऐसा मार मारा, ऐसा मार मारा, फिर मारते मारते मदरसा के बाउंड्री से, स्टूडेंट छात्र शिविर के स्टूडेंट मदरसा के बाउंड्री के बाहर, गेट के बाहर उन्होंने फेंक दिया। और फिर दूसरा दिन न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर पे ऐसा न्यूज़ डाला कि वो आउटसाइड का कुछ टेररिस्ट हमारे मदरसा में आया था, फिर हमारे स्टूडेंट को अटैक किया था, फिर हमने डिफेंस किया, ऐसा एक स्टेटमेंट दे दिया। तो ओके। आलिया मदरसा, बांग्लादेश में आलिया मदरसा में दूसरा कोई इस्लामी सियासी पार्टी का कोई एंट्री नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी का एंट्री है। हम्म। और जो कौमी मदरसा है ना, वो कौमी मदरसा में आलिया का स्टूडेंट का, आलिया मदरसा का जो जमात इस्लामी होता है ना, वो जमात इस्लामी छात्र शिविर, वो लोगों का एंट्री नहीं होता है, क्योंकि कौमी मदरसा के लोग तो दारुल उलूम देवबंद का सिलसिला है ना। सो दारुल उलूम देवबंद के सिलसिला का कौमी मदरसा का आलिम लोग ये समझते हैं कि मौलाना मौलाना क्या कहते हैं, जमात इस्लामी का लीडर फाउंडर मौलाना अबुल आला मौदूदी, वो देवबंदी आलिमों के हिसाब से, देवबंदी आलिमों के फेथ के हिसाब से, वो लोग गुमराह थे, जिसे को हम्म। जिसको 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 अरबिक में द्वालिन कहा जाता है। जी। वो उन लोगों के हिसाब से गुमराह थे, क्योंकि वो लोग देवबंदी उलमा ने बहुत सारे कुछ उसके गुमराह होने के बारे में बयान किया, जैसे कि उसका फेथ में गलती था, जैसा कि उसके नाम में गलती है, जैसा कि उसके पार्टी के नाम पे भी गलती है, जैसे कि उन्होंने नाम रख दिया कि अबुल आला मौदूदी। अबुल आला मौदूदी के डायरेक्ट माना होता है, अगर अरबिक से बंगला या इंग्लिश पे ट्रांसलेट किया जाए, उर्दू पे हिंदी पे ट्रांसलेट किया जाए, तो इसका डायरेक्ट माना होता है अल्लाह का बाप। हम्म। अबुल आला, आला अल्लाह का एक सिफाती नाम है। और हम्म। अबू अब का माना होता है बाप, अबुल आला का माना होता है आला का बाप। आला जो कि अल्लाह का एक सिफाती नाम है, इसलिए इसका माना हो जाता है वो अबुल आला, अल्लाह का बाप।
और उसका इस्लामिक पार्टी जमात इस्लामी के बारे पे भी नाम के बारे में भी उन लोगों का बहुत कुछ कहना है। जैसे कि जमात इस्लामी, इसका अगर तरकीब किया जाए, जमात होता है एक दल का नाम, फिरका का नाम। जमात माना होता है फिरका। इस्लामी, इस्लाम लफ्ज तो अरबिक इस्लाम से आया है, और ये इस्लाम लफ्ज को इजाफत किया गया याय मुतकल्लिम की तरफ। याय मुतकल्लिम होता है अपनी तरफ किसी को अगर निस्बत किया जाए, सो उसको याय मुतकल्लिम कहा जाता है। तो इस्लामी के माना होता है मेरे इस्लाम का जमात। सो इसका माना मतलब क्या, इसका मतलब क्या निकला? ये मोहम्मद का इस्लाम का जमात नहीं है, ये अल्लाह का इस्लाम का जमात नहीं है, ये मेरा इस्लाम का जमात होता है। इसका माना होता है मौदूदी साहब का इस्लाम का जमात है। इसका कोई ताल्लुक इस्लामी शरिया के साथ नहीं है, इसका कोई ताल्लुक कुरान के साथ नहीं है, इसका कोई ताल्लुक अल्लाह के साथ नहीं है। ये टोटली डिफरेंस है। ये मेरा फिरका है, ये मेरा जमात है। ये बात कहना है दारुल उलूम देवबंद का उलमाओं का। जैसा कि फिर कुछ लोग कहते हैं कि फिर तो वो लोग कुरान पढ़ते, हदीस पढ़ते, कुरान का दावत देते, इस्लाम का दावत देते, तो फिर वो दूसरा इस्लाम कैसा हो गया? तो वो लोग ऐसा भी कहते हैं, या इसको डिफेंस करने के लिए, जैसा कि क्या कहते, अहमदिया मुस्लिम। अहमदिया मुस्लिम तो भी मुस्लिम है, वो लोगों का नामों को साथ इस मुस्लिम लगाया जाता है। वो लोगों भी इस्लाम पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, सॉरी, लेकिन वो लोग मुसलमान नहीं है। वो कादियानी मुसलमान का बात कर रहा है मैं। इसका नाम क्या है? कादियानी साहब का नाम क्या था? मिर्जा गुलाम अहमद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। अहमदिया, हमारा यहाँ पे बांग्लादेश पे उसको अहमदिया जमात कहा जाता है। क्यों? कोई कहते हैं अहमदिया जमात, और कोई कहते हैं कादियानी जमात। और हमारे बांग्लादेश पे ये अहमदिया जमात को भी अभी काफिर अनाउंस किया गया। अच्छा, काफिर घोषित कर दिया है क्या उधर भी? या और पाकिस्तान पे भी काफिर है। इंडिया पे काफिर घोषित है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं। नहीं, हिंदुस्तान में नहीं है। सरकारी तौर पर घोषित है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं, लेकिन यह माना जाता है वो लोग काफिर है। तो मौदूदी साहब का इस्लाम भी ऐसा ही एक इस्लाम है, ऐसा ही कि इस्लाम है जो मेन स्ट्रीम इस्लाम, जो अपने आप को कहते हैं हम मेन स्ट्रीम इस्लाम पर है, और सारे के सारे फिरका बातिल हो गए। तो मौदूदी साहब का इस्लाम भी ऐसा ही है, लेकिन मौदूदी साहब को बातिल फिरकाओं में से पहला स्टेप पे रखते हैं। दारुल उलूम देवबंद का आलिमों ने मौदूदी साहब को बातिल फिरकाओं के ऊपर स्टेप पे रखते हैं। जैसे कि कहा जाता है ना कि बहुत सारे जमात अभी आ गया, जैसा कि इस्लाम पे अहले हदीस आ गया, अहले कुरान आ गया, और वो सारे बहुत सारे कुछ आ गया। लेकिन अहले हदीस तो ऐसा ऐसा नफरत, इस अहले हदीस के साथ ऐसा नफरत नहीं है, अहले कुरान के साथ भी ऐसा भी नफरत नहीं है जैसा नफरत है जमात इस्लामी और मौदूदी साहब के साथ। तो मेरा कहना किया था, मैं भूल गया, मैं कहाँ से कहाँ आ गया। मदरसे में आप आगे आलिया मदरसा, आलिया मदरसा। फिर मेरा 15 साल की उम्र में ऐसा मैंने दर्स निजामी का कोर्स कंप्लीट कर लिया, और फिर आलिया मदरसा में मैं दाखिल देने के बाद फिर मैं आलिम के लिए भी प्रिपरेशन लिया। आलिम का कोर्स मैंने किया मदरसा आलिया ढाका से, जो सरकारी मदरसा है, कंप्लीट 100% सरकारी मदरसा होता है। बांग्लादेश पे कंप्लीट सरकारी 100% सरकारी मदरसा 2 या 3 होगा, मे बी 1 होता है मदरसा आलिया ढाका, और दूसरा है मदरसा आलिया सिलेट, और तीसरा है मदरसा आलिया बोगरा। ये सिर्फ 3 ही मदरसा है 100%
100% क्या कहता है सरकारी, और बाकी सारे आलिया मदरसा है ना, वो 100% नहीं, हाफ सरकारी और हाफ सैलरी आता है स्टूडेंट से, कम्युनिटी से। और 100% जो सरकारी है ना, उन्हों का सैलरी 100% आता है सरकार से। तो ठीक है, फिर तो मैंने आपका आलिम का कोर्स पूरा हुआ था उसमें? या फिर मैंने दाखिल के बाद आता है कि आलिम, आलिया मदरसे के हिसाब से। दाखिल देने के बाद मैं आलिम का एडमिशन लिया मदरसा आलिया ढाका पे। मदरसा आलिया मैं ढाका पे मैंने 2 साल स्टडी किए, आलिम का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। और वहाँ पे मैंने आलिम का क्लास का फाइनल फाइनल एग्जाम देने के बाद फिर मैंने देखा कि आलिया मदरसा में इल्म का कोई चर्चा नहीं होता। हम्म। आलिया मदरसा में इल्म का कोई चर्चा नहीं होता। अगर इल्म आलिया क्या है? मदरसा या इल्म ज्ञान, नॉलेज, अच्छा, इल्म इल्मुल इल्म। हदीस, इल्मुल हम्म। हदीस, इल्मुल कुरान, इल्मुल नहू, इल्मुल फिक़ह, इल्मुल सरफ, उसूल फिक़ह, ये सारे इल्म का कोई भी चर्चा आलिया मदरसा में नहीं होता है। अगर हम्म। आलिया मदरसा का कोई स्टूडेंट को आप पूछे दौरा क्या क्या कहते हैं कामिल पास, कामिल पास कोई स्टूडेंट को आप पूछे कि भैया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तरकीब करके, तरकीब के माना होता है पार्ट ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करके, फिर किस वर्ड के रिलेशन किस वर्ड के साथ होता है, इसको अरबिक में तरकीब कहा जाता है। ये तरकीब करके फिर तहकीक करके इसका माना मेरे को समझा दो। कामिल पास कोई स्टूडेंट भी ऐसा मीनिंग नहीं निकालना सीखता, क्योंकि वो लोगों को पता नहीं है अबाउट द इल्म हो। वो लोग जानते, वो लोग सिर्फ पढ़ते, थोड़ा थोड़ा सा 2 एक चैप्टर पढ़ते हैं, लेकिन A to Z इल्म नहो नहीं पढ़ता, इल्म सरफ नहीं पढ़ता, इल्मुल बलागत नहीं पढ़ता। फिर वो अच्छा, अल्लामा ट्रांसलेशन साहब, करता है सिर्फ और सिर्फ नॉलेज मुगस्त। अल्लामा साहब, थोड़ा हम जी आगे हजरत। बढ़ते हैं। आपने मदरसे की पढ़ाई पूरी की, तो जब आप फाइनली जो, क्या आपकी डिग्री थी वहां पे? फाइनली आलिया मदरसा से मैंने आलिम किया। आलिम करने के बाद मैं आलिया मदरसा छोड़ दिया, जब देखा यहाँ पे इल्म का कोई परिवेश नहीं है, यहाँ पे इल्म का कोई चर्चा नहीं होता है, तो फिर आलिया मदरसा मैंने छोड़ दिया। मैं डायरेक्ट चला गया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ बांग्लादेश पे। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ बांग्लादेश से मैंने क्या कहते हैं डिग्री किया। फिर डिग्री करने के बाद मैंने उधर जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, बांग्लादेश में बहुत सारे इस्लामी बैंक होता है, वो इस्लामी बैंक में मेरे को जॉब हो गया, असिस्टेंट ऑफिसर होकर मैंने वहाँ पे जॉब पे दाखिल हो गया। और वहाँ पे लोग मेरे को मौलाना तो कहते हैं, लेकिन मैं तो मौलाना था, लेकिन मैं अंदर से काफिर था। तो मैं वो लोग क्यों वो काफिर थे? इस्लामी बैंक के अंदर पे काफिर था, क्योंकि मेरे को कुरान हदीस पढ़ने के बाद, दावरा हदीस पास करने के बाद, इसके बाद मैंने तो आलिया मदरसा का आलिम में पढ़ने लगा। और वहाँ पे क्लास करने का मेरे को जी नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पे तो आलिम का कोई परिवेश नहीं। इसलिए मैं नहीं नहीं, मेरे मेरे घर पे अल्लामा साहब। स्टडी करता, कुरान और हदीस स्टडी करता मेरे घर पे और लाइब्रेरी पे। और वहां पे जाकर कुरान पे बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन मिला, हदीस पे बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन मिला, तकदीर के बारे में मेरा सवाल है, मिल्कुल यमीन के बारे में मेरा बहुत कुछ सवाल है। ये सारे बहुत सारे सवाल है, ये सारे सवाल का कोई आंसर मेरे नॉलेज से, मेरे स्टडी से नहीं आ रहा था। इसलिए मैं अंदर से काफिर हो गया था। तो फिर क्या मैं क्या एक एक बार मजाक रिपीट करो, क्या क्या एक बार रिपीट करो, क्या क्या सवाल थे जिसके जवाब आपको नहीं मेरा मिल रहे थे? मेरा बहुत सारे सवाल थे। जो कुरान पे अल्लाह ने कहा लौ काना फीहिमा इलाहुन गैरुल्लाह लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा। अगर कुरान अल्लाह की सिवा कोई और अल्लाह का तरफ से होता है, कोई और माबूद की तरफ से होता है, तो उस पे बहुत सारे इख्तलाफात पाया जाना मुमकिन था। लेकिन हम्म। ये जबकि अल्लाह का कलाम है, तो वहां पे कोई इख्तलाफात, कोई कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद होना मुमकिन नहीं है। तो हम्म।
इस आयत पढ़ने के बाद मैं तो कुरान पहला अव्वल से आखिर तक तर्जमा तर्जमा पढ़ा, वहां पे तफसीर पढ़ा, जैसे कि दरस निजामी में क्या कहता है, जलालाइन कहा जाता है, यह जलालाइन दरस क्या निजामी का कॉन्ट्रडिक्शन टेक्स्ट आपको उसके। नजर आया उसमें? या सो मेरे को बहुत सारे कंट्राडिक्शन मेरे को मेरे तो वो मेरे को बताओ कोई। मेरे मेरे नजर को आया, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान का एक आयत में बताया, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अल्लाह के रास्ता पे लोगों को बुलाओ अच्छे हिकमत के तौर से, बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, और मौइज़ा हसना हसना से अल्लाह के रास्ता पे लोगों को बुलाओ। दूसरा आयत पे अल्लाह कह रहा है, वैजा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, जब जाहिल लोग, काफिर लोग तुम लोगों से क्या कहे, मुनाजरा में आ जाए, आर्गुमेंट करने लगे, तो उन लोगों के साथ आर्गुमेंट नहीं करना, उन लोगों को सलाम करके फिर भाग जाना। उधर कहता है अल्लाह के हिकमत, उदो इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अल्लाह के रास्ता पे लोगों को बुलाओ हिकमत और मौइज़ा हसना से, कौशल और मौइज़ा हसना से। इसका माना होता है ना कि लोगों को बुलाओ कि अगर लोग तुम्हारे साथ आर्गुमेंट करे तो आर्गुमेंट का जवाब दो, हिकमत के माना ऐसा होता है कि हिकमत से इसका जवाब दो। लेकिन दूसरा आयत पे कह रहा है, वैज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, जब वो लोग, काफिर लोग तुम्हारे साथ आर्गुमेंट करे तो तुम पीठ देकर भागते रहो। ये तो होता है ना कॉन्ट्राडिक्शन, हम्म। ये सही बात है। कॉन्ट्राडिक्शन है ना। ये एक हो गया। और और भी जैसा कि अल्लाह ने कहा, कुरान पे अल्लाह ने कहा कि खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समिहिम व अला अबसारिहिम फहुम ला यरजून, अल्लाह ने उन्हों के कल्ब पे मोहर डाल दिया। खतम अल्लाह माना होता है, खत्म, खत्म के माना होता है मोहर डाल देना, कल्ब पे मोहर डाला, खतम अल्लाह अला कुलूबिहिम व अला अबसारिहिम, और उन्हों के आंखों पे पर्दा डाल दिया। वो लोग कभी नहीं समझेगा, अगर वो लोग समझेगा नहीं, अल्लाह ने उन लोगों के अंदर पे कलब पे मोहर डाल दिया, तो फिर उन लोगों को अल्लाह के रास्ते में बुलाने के लिए नबी क्यों भेजा, रासुल क्यों भेजा? हम्म 1,24,000 या 2,24,000 नबी और रासुल भेजने का क्या मतलब है? हम्म अल्लाह अगर उन लोगों के अंदर पे कलब पे डाल दिया मोहर, तो फिर रासुल भेजकर उन लोगों को अल्लाह के रास्ते पे बुलाने का तो कोई मतलब नहीं रहता, रासुल भेजने का तो कोई मतलब नहीं रहता। दूसरा आयत पे कहा गया कि उलाइका हुम शरुल बरिया, लहुम कुलूबुल ला यफ्क़हूना बिहा व लहुम आयुनुल ला युबसिरूना बिहा व लहुम आज़ानुल ला यस्माऊना बिहा, उलाइका कल अनाम बल हुम अदल व उलाइका हुमुल खासिरून। ऐसा कुछ बताया गया, जो उन हम्म लोगों का कलब है लेकिन कलब से समझता नहीं, आकी आंखें है लेकिन आंखें से देखता नहीं, और क्या कहा, वो कुलूबुल ला यफ्क़हूना बिहा वो आयुनुल्लाह इब्सिरूना भी है, और तीसरा वर्ड क्या है, मेरे ध्यान से निकल गया। सो इतना सारे रेस्ट्रिक्शन काफिर के अंदर आप अल्लाह ने दे दिया। एक आयत पे कह रहा है कि खत्म, अल्लाह मोहर डाल दिया। दूसरा आयत पे कहता है कलब दिया लेकिन कलब से समझता नहीं। तो फिर मोहर डाल दिया, कलब से समझता नहीं, यह समझने का कुव्वत तुम अल्लाह ही तो देता है ना। तो तुम अल्लाह ने कलब से समझने का कुव्वत नहीं दिया तो फिर समझेगा कैसा? अगर फिर नबी की समझेगा बात नहीं, कैसे, नबी नबी की बात भी कैसे फिर समझेंगे वो लोग? नबी नैया नबी का बात कैसे समझेगा? आपने तो खत्म कर दिया, खत्म के हाँ माना मोहर कर दिया, सील डाल दिया, हाँ। सील डाल दिया। तो जिसके नबी का जिसके कोई कलब पे मतलब ही नहीं सील है। डाल दिया, जिसके कलब पे सील डाल दिया, जिसका कलब को आपने खत्म कर दिया, समझने का सलाहियत जिसका कलब पे नहीं है, आप अल्लाह ने नहीं दिया, फिर उन लोगों के पास आपने रसूल भेजा, आपने नबी भेजा, और रसूल को कहा जाओ उन लोगों को समझाओ। अरे मियाँ अल्लाह,
तुम तो उन लोगों को समझने का सलाहियत ही नहीं दिया। तो आपका रसूल भेजना, आपका नबी भेजना, ये तो सारे के सारे क्या कहते हैं, फजूल बात हो गया। तो बिल्कुल सही यह बात भी, है। या तो यह भी ऐसा ही कंट्राडिक्शन है। और बहुत सारे कंट्राडिक्शन होता है, जैसा कि एरर होता है, जैसा कि मैंने किया सूरतुल फातिहा पे। सूरतुल फातिहा से मैं डिस्कशन करूंगा। जैसा कि सूरतुल फातिहा पे है ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह के माना होता है सारे हमद, सारे तारीफ अल्लाह ताला के लिए है। रब्बुल आलमीन जो सारे आलम का पालने वाला है। रब का माना होता है पालने वाला। रब का माना होता है पालने वाला, परवरिश करने वाला, लालन पालन बंगाली में कहा जाता है, लालन पालन परवरिश करने वाला। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन मेरे मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ कि अल्लाह अगर सारे जहान का पालने वाला है, रब्बुल आलमीन हो। आलम एक बच्चे वाहिद वाहिद है, आलमीन जमा है। आलम होता है एक ही कायनात, और आलमीन होता है सारे कायनात। हाँ, जितना प्लूरल। भी कायनात मौजूद है, जितना भी मखलूक मौजूद है, जैसा कि जिनसुल इंसानियत, जिनसुल जिनसुल नबातात, जिनसुल हैवानात, ये सारे एक एक जिन्स को एक एक आलम कहा जाता है अरबिक में। जैसे जिनसुल इंसान मतलब होता है मानुष के इंसान का जिन्स, ये एक आलम है। जिनसुल हैवानात कहा जाता है दूसरा परिंदा परिंदा जितना कुछ है ना, उन जिन्स को कहता है जिनसुल हैवानात। जिनसुल नबाता तो वो कहता है जैसा कि जो नबातात का उर्दू उर्दू क्या होता है, हिंदी क्या होता है? दरख्त। दरख्त का जो दरख्त होता है ना, जो माटी से, जो जो जमीन से उगता है, जो जमीन से उगने वाला है, उसको जिनसुन नबातात कहा जाता है। ये सारे एक एक चीज को, एक एक जिन्स को एक एक आलम कहा जाता है, और सारे जिन्स को मिला के आलमीन कहा जाता है। सारे सारे मखलूक का पालने वाला है, परवरिश करने वाला है। तो मेरा एक सवाल पैदा हुआ यहाँ पे, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन है, पालने वाला है, परवरिश करने वाला है, तो हम तो देखते हैं दुनिया पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मॉर्निंग में जिसको खाने को मिलता, लेकिन रात को खाने का नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसा लोग हैं जो सारे के सारे दिन कुछ भी खाने को नहीं मिलता। बहुत सारे के सारे लोग हमारे नजर से गुजरा है, जिसको रहने के लिए कोई घर नहीं होता है, जिन्हों को होमलेस कहा जाता है। वो लोग ठंडी पे, यहाँ पे हम तो अभी यूएस पे रहता है, यहाँ पे मैं देखा है बहुत सारे होमलेस यहाँ पे है, जिन्हों के माइनस टेम्परेचर पे रहने के लिए नहीं, कोई घर नहीं होता है। वो सबवे के अंदर ट्रेन होता है ना, वो ट्रेन पे सारा रात गुजरते हैं। ट्रेन उधर जाती है, उधर जाती है, इधर जाते हैं, वो ट्रेन पे सारा रात गुजरते हैं, लेकिन उन्हों के रहने के लिए कोई घर नहीं होता है। तो मेरा सवाल ऐसा ही पैदा हुआ था। तब तो मैं मेरे नजरिया मेरे नजर में ये सब कुछ नहीं देखा था। मैंने तो मेरे कंट्री में बहुत सारे लोगों को देखा, जो लोग माजार पे रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, जैसा कि बहुत सारे माजार होता है हमारे बांग्लादेश पे, जैसा कि शाहजलाल का मजार, बायजीद सिलेट शाहजलाल का मजार, उधर चट्टग्राम पे बायजीद बुस्तामी का मजार, और बहुत सारे लालन शाह का मजार। लालन शाह को मालूम है आप लोगों का? वो एक सिंगर था। सो लालन शाह का मजार, वहां पे बहुत सारे लोग ऐसा पाया जाता है, जो लोग खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ दोपहर पे, मॉर्निंग पे एक बार खाने के लिए, और रात के एक बार खाने के लिए सारे दिन माजार के आसपास घूमते हैं, माजार पे रहते हैं। और माजार पे जो नजरिया आता है, नजराना आता है,
लोगों ने, जैसा कि मुर्गी लेके आता है, बकरियां लेके आता है, गाय लेकर आता है, चाल डाल लेकर आता है, वो सारे पका के फिर वहाँ के जो लोग होमलेस लोग है तो ना, बेसिकली वो होमलेस लोगों को अल्लामा खवाते साहब, हैं। या बेसिकली आपका सवाल ये था कि जब अल्लाह ये कह रहा है कि वो पालनहार है, तो इसके या बावजूद भी कई सारे लोग भूखे क्यों मर रहे हैं, भूखे नंगे क्यों है, और उसमें या या ज्यादातर जो है वो मोमिन हजरात भी है। ठीक है, तो दो चीजें बता दी, और तीसरी क्या चीज या थी? बहुत सा या तो फिर ये है ना, अल्लाह अगर रब है तो वो लोग भूखे क्यों, नंगे क्यों, वो लोगों का कोई घर क्यों नहीं है? तो अल्लाह कैसा रब हुआ, पालने वाला कैसा हुआ है? ठीक है, फिर और? फिर जैसा कि रहमान और रहीम पे भी मेरा सवाल था। रहमान हम्म। और रहीम पे मेरा सवाल ऐसा है कि रहमान का लफ्ज सगाए मुबालगा का है, रहीम का लफ्ज भी सगाए मुबालगा का है। ये दोनों ही लफ्ज मश्तक है रहम से। रहम के माना होता है ग्रेस, और उर्दू पे भी रहम कहा जाता है। हिंदी पे क्या कहा जाता है मेरे को मालूम नहीं। रहम वर्ड से रहमान आया। रहम वर्ड हम्म। से दया, रहम वर्ड से दयालु। या दया, दयालु, दयालु। रहम वर्ड से इसमें फाइल का सगा होता है राहिम, यानी दया करने वाला। और हम्म। इसमें फाइल के ऊपर होता है मुबालगा का सगा, वो इसमें फाइल के वजन पे नहीं होता है, दूसरा वजन पे होता है। इसको अरबिक में सिफत मुशब्बा भी कहा जाता है और सिफत मुबालगा भी कहा जाता है। अच्छा अल्लामा साहब, इतना टेक्निकल टर्म्स हमारे दर्शकों को नहीं समझेगा, तो आप मतलब शॉर्ट में और सवाल या यहाँ पे हाँ क्या क्रिस्प सवाल है, में यहाँ पे आप अपनी क्या बात सवाल है? रखें। जी। रहमान और रहीम पर मेरा क्या सवाल है? रहमान और रहीम पे मेरा सवाल यह है कि रहमान का माना होता है असीम दयालु, बेहद मेहरबान। रहीम का माना भी एक ही है, बेहद मेहरबान। जो इतना बेहद मेहरबान है, इतना बेहद रहम करने वाला है, इतना बेहद दयालु है, तो वो बंदा, वो अल्लाह हमको जहन्नम पे कैसे जलाएगा? हम्म। हमको हमको जिंदा वहां कैसे फ्राई करने वाला है? एक माँ के सामने अगर एक बच्चे को थोड़ा सा दर्द हुआ है, तकलीफ हो रहा है, तो माँ को, मैंने बहुत सारे माँ को देखा, वो माँ रोने लगती है। और अल्लाह का रहम वो माँ के बहुत हजार ज्यादा है। अल्लाह का करम माँ के अंदर से बच्चा का जैसा रहम होता है, करम होता है, दया होता है, इससे हजारों गुण दिया ज्यादा रहम करने वाला है अल्लाह इंसान से। तो माँ अगर एक बच्चे के दर्द पर रोने लगती, तो अल्लाह हमारे अजाब देख कर हंसेगा क्यों? ये कैसा रहमान और ये कैसा रहीम? ये था मेरा सवाल। जी जी, बहुत जबरदस्त। फिर मालिकी यौमिद्दीन के लफ्ज में मैंने गौर किया। मालिकी यौमिद्दीन क्या होता है? क्यामत की विचार दिन के मालिक। और ये दिन का लफ्ज कुरान पे बहुत सारे मीनिंग पे यूज किया गया। यहाँ पे यूज किया गया कि दिन के माना होता है आखिरी विचार के दिन, क्यामत के विचार के दिन। मालिकी यौमुद्दीन, यहाँ पे दिए दाल या नून, ये लफ्ज का मीनिंग किया गया क्यामत के दिन। और दूसरा एक आयत का आया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने आज के दिन तुम्हारे दिन को मुकम्मल कर दिया। वहां दिन के मीनिंग लिया गया आ, आ, दिन के मीनिंग लिया इस्लाम गया को। मजहब, मजहब, धर्म। दिन के माना हुआ वहां पे, दिन हुआ दिन का माना इस्लाम, इस्लामी मजहब को समझाया गया, यानी मजहब को समझाया गया। हम्म। एक ही दिन वर्ड वो कुरान पे एक टाइम यूज किया गया क्यामत के विचार के दिन पर, और दूसरा टाइम यूज किया गया दीन इस्लाम के दिन पर। तो अल्लाह का लैंग्वेज इतना पोर क्यों?
हर मीनिंग के लिए हर मीनिंग के लिए क्यों अल्लाह ने डिफरेंस डिफरेंस वर्ड क्रिएट नहीं करने पाया। और अल्लाह उधर कहता है अल्लाह कादिर मतलब है, अल्लाह सब कुछ करने पे कादिर है, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कादिर। तो मेरे को यहाँ पे भी कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि अल्लाह अगर कादिर मतलब है तो अल्लाह का लैंग्वेज इतना पोर क्यों। अल्लाह ने क्यों हर मीनिंग के लिए डिफरेंस डिफरेंस वर्ड क्रिएट करने नहीं पाया। ऐसा एक पुअर लैंग्वेज पे अल्लाह ने कुरान क्यों उतारा। क्यों स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज देखकर अल्लाह ने कुरान नहीं उतारा। ये भी मेरा एक सवाल है अल्लाह का कुदरत के ऊपर। सो अल्लाह तो कादिर मतलब नहीं होगा। ये मेरा जी ये मेरा सवाल हर आयत पे ऐसा ही मेरा सवाल पैदा होने वाला है। जैसा कि फिर कहा गया गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन। मगदूब अलैहिम का माना होता है जिन लोगों के ऊपर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ, उन लोगों का रास्ता हमको नहीं दिखाओ, ये दुआ है। तो अल्लाह ने जिन लोगों को गजब नाजिल किया उन लोगों को इस्लामी शरिया के जो लोग क्या कहते हैं, मुजतहिद कहते हैं, फकीह कहते हैं, मुफ्ती कहते हैं, मुफस्सिर कहते हैं, वो लोग कहते हैं वो लोग हैं जिन लोगों पर अल्लाह ने गजब नाजिल किया, वो लोग यहूदी लोग हैं। यहूदी लोगों के ऊपर अल्लाह ने गजब नाजिल किया। तो यहूदी लोगों के ऊपर गजब नाजिल किया अल्लाह, आपने उन लोगों पर गजब नाजिल किया तो हमको तो कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो यहाँ पे नमाज पढ़ने आए। यहाँ पे दूसरे लोगों पर क्यों हम लानत क्यों भेजो। गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन। और द्वालिन का माना होता है, क्या कहते हैं, नसारा को द्वालिन कहा जाता है, जो रास्ता से भटक गया। सो अल्लाह आप ही ने तो उन्हों को रास्ता से भटक दिया, गुमराह बना दिया। तो फिर उन लोगों का क्या कहते हैं, उन लोगों को यहाँ पे नसरा को दालिन कहा और यहूदी को मकतूब अलैहिम कहा। और दूसरा एक आयत पे अल्लाह ने कहा कि इन्नल लजीन आम आयत भूल गया। जिन लोगों ने अल्लाह पर ईमान लाए, नसरा में से, यहूद में से हो या साबीन में से हो, वो लोग अगर अच्छा अमल करेगा तो वो लोग जन्नत पे जाएगा। तो नसरा पे उधर अल्लाह ने कह रहा है कि अल्लाह वो लोग जन्नत पे जाएगा, यहूदी पे कह रहा है कि वो लोग जन्नत पे जाएगा, और उधर कह रहा है कि वो लोग मकतूब है, अभिशप्त है, और उधर कहा है कि वो लोग द्वालिन है, गुमराह है। तो उधर कहा गया कि वो लोग भी हादी है, किया कहते सिरातुल मुस्तकीम के ऊपर पे है, वो लोग भी जन्नत पे जाएगा। और इधर कह रहा है कि वो लोग द्वालिन है और लोग मकतूब है। तो इन दोनों आयत पे एक कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाता है मेरे को। हम्म फिर मैं जब कहाँ पे गया, अलिफ लाम मीम पढ़ने लगा। जब मैं अलिफ लाम मीम पढ़ता तो मेरे को सवाल पैदा होता है, अलिफ लाम मीम जलालाइन के तफसीर में बताया गया, अलिफ लाम मीम, इसके कोई मीनिंग किसी को मालूम नहीं अल्लाह के सिवा। अल्लाह आलमु बिमुरादी बिजालिका, जलालाइन का इबारत ऐसा है, अल्लाह हम्म आलमु बिमुरादी बिजालिका, सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि इसका माना क्या होता है, और कोई इसका माना नहीं जानता। तो मेरा सवाल ऐसा हुआ कि अगर कुरान लोगों का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, लोगों का चलने का एक रास्ता बताया जाता है, तो कुरान पे ऐसे हरूफ मुकत्तात क्यों होगा। इन्हों को अरबिक में हरूफ मुकत्तात कहते हैं। यह हरूफ हम्म मुकत्तात क्यों होने वाला है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। जो जो चीज लोगों को कोई मीनिंग नहीं देता है, वो चीज तो एक कॉन्स्टिट्यूशन पे होने वाला नहीं है। रास्ता हाँ, दिखाने बेमाना हो जाता है। रास, बेमाना हो जाता है। रास्ता दिखाने के लिए जो गाइड बुक होता है ना,
वो गाइड बुक में ऐसा कोई वर्ड होना नहीं चाहिए जिसका माना हमको मालूम नहीं आता। अगर ऐसा कोई वर्ड आ गए तो हमारे लिए ये परफेक्ट गाइड बुक नहीं है। दुनिया पे मेरे हिसाब से ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है जहाँ पे ऐसा कोई वर्ड लिखा हुआ है जिस वर्ड का मीनिंग उस कंट्री का लोगों को, उस कंट्री का जो बैरिस्टर को, जज साहब को मालूम नहीं है। तो अगर ऐसा कोई वर्ड दुनिया के कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पे हो तो मैं कहूँगा ये कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूशन होने के लिए, एक गाइड बुक होने के लिए यहाँ पे ऐसा ऐसा वर्ड होना चाहिए जिसका क्लियर मीनिंग होना चाहिए। अगर क्लियर मीनिंग नहीं है तो वो गाइड बुक नहीं हो सकता है। हम एग्जैक्टली। जब वो गाइड बुक नहीं हो सकता है। तो अलिफ लाम मीम अल्लाह ने दिया, वो तो कोई गाइड बुक नहीं हुआ। वो तो ऐसा हो गया कि एक जादूगर, जैसे कि जादू म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिशियन जब म्यूजिक म्यूजिक शुरू करते हैं तो बहुत सारे ऐसा नॉनसेंस बातें करते हैं, ओम 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 ओम, गुनगुन करके वो कुछ कुछ बोल जाते हैं। तो उन लोगों के बात समझ में नहीं आता है हमको। जैसा कि अल्लाह भी ऐसा ही एक एक्टिंग कर रहा है, हमको कुछ बात कर रहा है लेकिन हमको इसका पता नहीं है। ये गाइड बुक नहीं हो सकता। फिर एक ही अलिफ लाम मीम के बाद किया है। अलिफ लाम मीम जालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। जालिका लफ्ज के ऊपर भी मेरा सवाल पैदा हुआ था। जालिकल किताबु ला रैब फीह, जालिका ऐसा है कि इसमें इशारा है जिसको यूज किया जाता है, इसमें इशारा लिल बैद। इसमें इशारा दो किस्म का होता है। एक किस्म होता है इसमें इशारा लिल करीब, एक किस्म का होता है इसमें इशारा लिल बैद। सो इसमें इशारा लिल करीब होता है हाजी, हाजी के माना होता है ये। और जालिका इसमें इशारा लिल बैद, ये होता है जालिका के माना होता है वो। जैसा कि दरिया के, इस दरिया के ये पार और दरिया का दूसरा पार, दूसरा पार को आप अगर मीनिंग में लिया जाए तो इसको कहा जाएगा जालिका। और ये हो, इस पार मीनिंग लिया जाए, दिस दिस बैंक मीनिंग लिया जाए तो कहा जाएगा हाजी, हाजी। तो अल्लाह ने हमारे हाथ पे कुरान है ना, हम तो हमारे हाथ से टच करते हैं, पढ़ते हैं, हमारे हाथ पे कुरान है। तो यहाँ पे तो ऐसा कहना था कि हाजिल किताबु ला रैब फीह, ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ने क्यों कहा कि वो किताब है जिसमें कहा शक नहीं? सो वो से क्या मीनिंग हो जाता है? वो से मीनिंग होता है क्या? वो तौरात, वो जबूर, वो इंजील। कहाँ से मे बी बैकग्राउंड साउंड आ रहा है? जी अल्लामा साहब, जी हजरत। अस्सलाम वालेकुम। जी साहिल भाई, जी खैरियत से हैं आप? फर्स्ट क्लास साजिद इमाम साहब, इस्तकबाल है आपका। जी शुक्रन शुक्रन। असल में मेरा नेटवर्क पता नहीं क्यों 2 दिन से काफ़ी स्लो चल रहा है और ज़बरदस्त अज़ाब आया है, पता नहीं किस मरदूत की बद्दुआ लग गई है। अल्लामा साहब, मैं कह रहा था ये जो ग्रामर है ना, जी ग्रामर हजरत। ज़बरदस्त है आपकी, लेकिन ये जो व्यूवर्स हैं हमारे, ग्रामर इनके ऊपर से जाएगी। लेकिन आपने बहुत सही बात कही, ये हाज़ा, हाज़िही, चाहे हुआ, अगर हुआ का सेगा इस्तेमाल हो रहा है तो ज़ाहिर सी बात है वो माज़ी बैत के लिए, मतलब या जो गुजर मेरे चुका हिसाब है, से, या मुस्तकबिल के मेरे लिए है। मेरे जी हिसाब से यहाँ पे हाजिल किताबु ला रैब फीह होना चाहिए था। अल्लाह ने जालिकल किताबु ला रैब फीह कह दिया, ये अल्लाह ने गलत कह दिया। जी जी जी, जो बिल्कुल। गुजर चुका है उसके मुतालिक कह सकते हैं, लेकिन जो माजी करीब में आपके है, आपके पास में है, तो हाजा या हाजे ही कह सकते हैं। अगर मुअन्नस के लिए तो या हाजे ही, या या अगर मुजक्कर के लिए तो हाजा। तो ठीक हाजा है, या। लेकिन वो जो ग्रामर है वो हमारे व्यूवर्स तो तक कुल नहीं मिला के समझ आएगी ना। जी साजिद, कुल मिला के बात ये है अल्लामा साहब की कि चूंकि इन्होंने डीपली स्टडी की है, पढ़ाई भी की हम्म। है, तो इनको हर एक एंगल से इनको कुरान में खामियां नजर आई, उसकी लैंग्वेज को लेके, फिर वो जो बातें करता है उसको लेके इनको कॉन्ट्रडिक्शन नजर आया, और उन्होंने कुछ बातें जो है बताई भी है जी हमारे सामने कि भाई वो रब कैसे हो सकता है, जो तो फिर लोग जो है वो भूखे मर रहे हैं तो अपने आप को रब कैसे कह सकता है, फिर रहीम या रहमान कैसे कह सकता, अपने आप को कह सकता जब वो अपने ही बंदों को हमेशा हमेशा के लिए जलाएगा। तो ये सारी चीजें देखकर अल्लामा साहब ने फिर इस्लाम को त्याग दिया, इन्होंने छोड़ दिया। और मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप
इस्लाम को यानी समझ कर आपने छोड़ा। अल्लामा साहब, एक सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आप समझे, क्या बाकी जो उलमा जो गहराई से पढ़ते हैं, क्या उनको समझ में नहीं आता कि ये सब खामियां हैं? और अगर समझ में आता है तो वो बाहर क्यों नहीं निकलते? वो लोगों को ब्रेन वॉश किया गया। वो लोगों को ऐसा ब्रेन वॉश किया गया कि कुरान ही ऐसा एक किताब है जहाँ पे कोई शौक और शुबा नहीं। जालिकल किताब ला रैब फीह कहा दिया ना, तो यो लोगों को ऐसा ब्रेन वॉश किया गया। उन लोगों को अगर कहीं कहीं भी पता चल गया ये गलत बात है, लेकिन साथ साथ वो लोग ये कहा देते माज़अल्लाह औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह ये शैतान का वसवसा है, अल्लाह मेरे को शैतान के वसवसा से पनाह